Hello, my dear students. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. Welcome back to our English online class. So, in today's class, we'll be doing English literature, and as in English literature, we have done couple of chapters and poem like Happy Birthday, The Lark, Safe at Last first part, and Safe at Last second part, right? So, in today's class, we'll start a new chapter, The End of It, and this is by Charles Dickens. And this story is adapted from a Christmas Carol. So, before starting this chapter, students, I want you all to read this chapter and explain this chapter as well in that. So, and you all are advised to share your reading audio to me personally through WhatsApp. Okay, so and students, one more thing, watch this video very carefully because in this video I have explained, I'm explaining this chapter. Okay, so yes, so let's begin. So in this chapter, we'll read about Ebenezer Scrooge. So basically, Ebenezer Scrooge is an old man who lives alone, and he's stringy and rude. So on Christmas Eve, he is visited by three goats, and they show him things which change him for the better. And what happened? Then they teach him the value of love. So after this encounter, he has a change of heart. He becomes kind, caring. So in this chapter, we'll be reading about this only. So let's start. So when Scrooge woke up after his encounter with the spirits, here spirits are ghosts, right? He was very confused. I do not know what day of the month it is, said Scrooge. Scrooge कहता है बड़ी confusing तरीके से that he don't know that what day of the month it is, and I do not know how long I have been alone along the spirit, but I am happy, I am delighted. Just then the church began ringing out the loudest peals. Here the meaning of peals is continuously ringing bell. मतलब बेल की आवाज लगातार आना. He had ever heard, right? क्लैचिंग हैमर कंटिन्यूसली यही सारी ऐसे बेल्स सुनाई दे रही थी. सो रिंगिंग टू द विंडो स्क्रूज opened it and put out his head. There was no fog and no mist. So basically only clear, bright, shining golden sunlight उसे दिख रही थी और काफ़ी अच्छा दिन था, काफ़ी सुनहरा दिन था, काफ़ी चमकदार दिन था. As per Scrooge, right? Only the heavenly sky, the sweet fresh air, and the merry bells. उसे heavenly sky दिख रहा था, है ना? Sweet air दिख रही थी और वो bells की आवाज़ सुनाई दी थी जो कि उसे सो फ्रॉम दिस आई कैन से कि वहाँ पे कोई फेस्टिव सीजन चल रहा है, राइट? फ्रेश से सब कुछ चीज़ें फ्रेश नज़र आ रही है, मेरी बेल भी सुनाई दे रही है, राइट? सो नाउ लेट्स रीड. Scrooge saw a boy in Sunday clothes. What is the meaning of Sunday clothes here? So the meaning of Sunday clothes is the best clothes that one has. जो किसी के पास सबसे अच्छे कपड़े होते हैं ना, और we can say which are worn to church on Sunday. तो जो चर्च में पहने जाते हैं संडे को, कोई स्पेसिफिकली कोई क्लोथ होता होगा या कोई स्पेशल क्लोथ्स हुआ करते होंगे, या कोई आपके पास सबसे बेस्ट क्लोथ हो तो उसके लिए भी बात हो रही हो यहाँ पे, राइट? यस. टुडे रिप्लाइड द बॉय. बॉय ने रिप्लाई करते हुए कहा, वाई इट्स क्रिसमस टुडे. ओ, सो द फेस्टिव season is what it is today. It is Christmas. It's Christmas Day. Wonderful, said Scrooge. So, do you know the plotterers in the corner of the next street? So here the meaning of plotterer is person who sells chicken, turkey and so on. So here turkey, what is turkey? Turkey, it is a popular food which people in festive occasions, like वहाँ पे कोई festive occasion है ना होगा तो वहाँ पे टर्की जो एक डिश है वो खाई जाती है, राइट? सो यस, आई डू नॉट रिप्लाई, आई डू रिप्लाइड. लेड रिप्लाई, हियर द मीनिंग ऑफ लेड इज अ बॉय. बॉय रिप्लाई करते हुए कहता है, आई डू, मैंने उसे देखा है. ठीक है. डू यू नो वेदर दे हैव सोल्ड द प्राइस टर्की दैट वॉज हैंगिंग अप देयर.
है ना, कि तुम्हें पता है वो जो टर्की यहाँ पे टंगा हुआ था वो कहाँ जाए, किसको सोल्ड करा है, वो कहाँ पर है, ठीक है। नॉट द लिटिल प्राइस टर्की बट द बिग वन, वो छोटे वाले टर्की के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बिग टर्की वन के बारे में बात कर रहा है। सो द वन एज बिग एज मी, रिप्लाइड द बॉय, बॉय रिप्लाई करते हुए कहते हैं क्या वो मेरे जितना, आप उस टर्की के बारे में बात करते हैं जो मेरे जितना है, मेरे जितना बड़ा है साइज में। येस माई बक, हेयर द मीनिंग ऑफ बक, येस माई बक इज येस माई बॉय। दैट्स द वन सेड स्क्रूज, स्क्रूज कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स हैंगिंग देयर नाउ, रिप्लाइड द बॉय, कहते हैं वो वहाँ पे टंगा हुआ है। वंडरफुल सेड स्क्रूज, go and buy it and I will give you a shilling. The students, the meaning of shilling here is we can say a British coin, एक ब्रिटिश सिक्के के बारे में यहाँ बात हो रही है, विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो उसको वो देने के बारे में कर रहा है कि अगर तुम मेरी हेल्प करते हो, इफ यू हेल्प मी देन आई विल डेफिनेटली गिव यू अ शिलिंग। यस, tell me to write it here so I may give them the direction of where to take it. Right now, exclaimed the boy. Yes, said Scrooge. Scrooge, come back with the man and I'll give you a shilling. Come back with him in less than 5 minutes and I'll give you half a crown. So basically here the meaning of half a crown is a British coin worth 2.5 shilling. Again you know the meaning of shilling, a British coin ना. So अब जो कि वो यूज़ में है नहीं, पर उस टाइम पे जब ये स्टोरी हो रही है तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ओके। So what happened in this chapter till now is that Ebenezer Scrooge, a stingy and a rude man who lives alone, he visited by three quotes that shows him his past, present and future, right? These visions change Scrooge into a better man. वो जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दिखा रहे थे उन्हें, जो घोस्ट ने उसकी हेल्प करी उसको चेंज करने में, दिस विजन चेंज स्क्रूज इनटू अ बेटर मैन, उसे और बेहतर इंसान बनाया, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंसेस उसके साथ हुए, दिस वो गोस्ट से मिला, वो जो स्पिरिट से मिला, उसने किस तरीके से उसकी लाइफ पर एक इफेक्ट डाला है और किस तरीके से पॉजिटिवली वो एक नए वर्जन से निकल के आया है। एंड दिस विजन चेंज स्क्रूज इनटू अ बेटर मैन, और जो भी थ्रू आउट वो एक्सपीरियंसेस रहे उसकी वजह से क्या हो गया, जो स्क्रूज है वो क्या हो गया, एक बेटर मैन बन गया, एक बेटर पर्सन बन गया, राइट। सो दिस सो वी कैन से हाउ स्क्रूज इज अ चेंज मैन नाउ। अब कैसे वो चेंज मैन है हम पढ़ेंगे भी इस स्टोरी में इसके आगे, और हमने अभी तक पढ़ा भी है। सो स्क्रूज आर वेरी हैप्पी व्हेन ही वेक्स अप, जब वो उठा उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। एंड हर्स द चर्च बेल्स रिंगिंग लाउडली merrily, राइट। व्हेन ही लुक्स आउट फ्रॉम द विंडो ही सीज अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स, एक यंग बॉय जा रहा था जो अपनी संडे क्लोथ्स में था, राइट। और वो काफ़ी सुंदर दिख रहा था, काफ़ी हैप्पी दिख रहा था। तो स्क्रूज आस्क हिम व्हाट डे इट इज़, उसने उससे पूछा कि आज कौन सा दिन है। द बॉय इन्फॉर्म्स हिम दैट इट इज़ क्रिसमस डे, आज कौन सा डे, क्रिसमस डे। स्क्रूज cheerfully wishes him and ask him to go and buy the turkey from the प्लॉटर्स शॉप, जो हम बात कर रहे थे ना, द पर्सन हु सेल वर्ड, क्या सेल करते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल मीट, चिकन, और वी हैव डिस्कस अबाउट टर्की फूड एंड सो ऑन, राइट। सो शॉप बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेंड इट टू बॉब। सो हेयर बॉब जो है ना वो कौन है, उसका क्लर्क है जिनके ऑफिस में वो काम करता है, राइट। सो ही प्रोमिसेस टू रिवॉर्ड द बॉय फॉर दिस जॉब, उसने बोला कि तुम जिस तरीके से काम करोगे आई विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू फॉर इट। जो उसने किसके बारे में बात करी थी, शिलिंग्स के बारे में बात करी थी, ब्रिटिश कॉइन के बारे में बात करी थी। सो व्हाट हैपन आफ्टर दैट, आफ्टर डिस्पैचिंग द टर्की, जब उसने वो डिलीवर करा दी, स्क्रूज वेयर्स हिज बेस्ट क्लोथ्स, अगेन स्क्रूज भी अपने बेस्ट क्लोथ्स में आ गया, संडे क्लोथ्स में आ गया वी कैन से, एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। ही cheerfully एंड विशेज अ मेरी क्रिसमस टू एवरीबडी ही मेट्स ऑन स्ट्रीट, वो हर किसी को विश कर रहा था, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस फॉर एग्जाम्पल, जो भी उसे रास्ते में स्ट्रीट में दिख रहा था। सो नाउ ही इज़ अ चेंज पर्सन, है ना। अब वो चेंज पर्सन अपने आप में महसूस कर रहा था। नाउ ही इज़ नॉट अ रूड पर्सन, वो स्टिंगी नहीं है, वो रूड नहीं, किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर रहा है। इवन वो सबसे क्या पॉजिटिवली
हैप्पीली सबसे बात कर रहा है, चेयरफुली सबसे बात कर रहा है, सबको गुड विशेस दे रहे हैं, राइट. सो ही देन मीट्स एन ओल्ड मैन हु हैड विजिटेड हिम इन हिज ऑफिस द प्रीवियस डे. ठीक है. स्क्रूज हैड बीन रूड टू हिम. अब वो एक आदमी से मिला जिससे वो एक दिन पहले ऑफिस में मिला था, और उसने काफ़ी रूड तरीके से उससे पहले एक दिन पहले बात करी. सो ही वॉक्स अप टू द मैन एंड वार्मली विशेज हिम अ मैरी क्रिसमस. वो उसके पास गया, वार्मली विश किया दैट आई विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस. He offers to give the man the money he wanted for a good cause. So Scrooge thanks to the man for accepting the offer and then proceeds. So he goes to church and walks around street happily. So whatever he have done, मतलब जो पास्ट में जो भी उसने गलत किया था, किसी के साथ मिसबिहेव किया था, किसी के साथ रूडली बात करी थी, सो उसके जो एक्सपीरियंसेस थे आफ्टर मीटिंग गोड्स, अब वो गोस्ट स्पिरिट अब वो चेंज हो रहे थे. अब वो पॉजिटिव पॉजिटिव महसूस कर रहा था और सबको पॉजिटिव वाइब दे रहा था, है ना. वो चाहता था कि अब मैं एक क्या बन जाऊँ, एक पॉजिटिव पर्सन बन जाऊँ, और सबको वो वार्मली, चेयरफुली, हैप्पीली विश कर रहा था, गुड विशेस दे रहा था ना. सो यस, ही गोज टू चर्च एंड वॉक्स अराउंड स्ट्रीट्स हैप्पीली. चर्च की तरफ जा रहा है, हैप्पीली स्ट्रीट में घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, हैप्पी मूड पे है. ही डिसाइड्स टू विजिट हिज नेफ्यूज हाउस. अब उसने कहा, डिसाइड किया दैट कि वो कहाँ जाएगा, अपने नेफ्यू के हाउस में जाएगा. फ्रेड, द नेम ऑफ दैट हिज नेफ्यू इज Fred. The nephew warmly welcomes Scrooge. Scrooge has a nice time with his nephew's family. वहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया. क्यों क्यों उसने उसको ये सब चीज़ें अब अच्छी दिख रही हैं? क्योंकि वो खुद अंदर से अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है ना. क्योंकि वो खुद अच्छा महसूस कर रहा है तो उसे हर चीज़ अच्छी दिख रही है. ऐसा ही होता है ना, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आती है ना. अगर हम गलत सोचते हैं तो हमें हर चीज़ गलत दिख रही होती है. तो मेरे हिसाब से अब जो स्क्रूज है उसमें यही पॉजिटिविटी आई है, शायद उसमें यही मेरे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन थिंक, और मैं इस डिसीजन पे आ पा रही हूँ कि क्यों जब वो पहले गलत डिसीजंस लिया करता होगा, उस वजह से गलत सोचा करता होगा और गलत लोगों से बात किया करता होगा गलत ढंग से, तो उसे हर चीज़ गलत दिखती होगी, है ना. क्योंकि वो खुद सेटिस्फाई नहीं है अंदर अपने आप से. पर जब वो अपने आप से सेटिस्फाई है तो उसे हर इंसान अब अच्छा दिख रहा है ना. वो हर किसी से अच्छे से बात कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो उसे करना चाहता है, राइट. सो स्क्रूज हैज़ अ नाइस टाइम विद हिज नेफ्यूज़ फैमिली. वहाँ पे भी उसे काफ़ी मज़ा आया, उसे बहुत मज़ा आया वहाँ पर. After that, the next day, Scrooge reached his office early to surprise Bob. Who is Bob here? Bob is clerk. किसका clerk है? Scrooge का ना. So the next day, Scrooge reached his office early to surprise Bob, and who is 18.5 minutes late. अब वो कितने मिनट लेट था? 18.5 minutes late. Scrooge pretended to be a very angry with him. और Scrooge ऐसे pretend कर रहा था. The meaning of pretended, acting to be something. एक एक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो उस मोमेंट पे वो महसूस नहीं कर रहा है, पर वो प्रिटेंड कर रहा है कि दैट ही इज़ वेरी एंग्री विद हिम एंड स्कोल्ड हिम फॉर बीइंग लेट. उसे डांट रहा था लेट होने के लिए. बॉब अपोलोजाइज humbly and explains that he had been making merry the night before on Christmas because वो festive season है. Because of that excuses दे रहा था कि मैं इस reason से late हो गया. Genuine explanation दे रहा था कि because of this I am late today. Okay. So yes, of course, Bob apologizes humbly and explains that he had been making merry the last before on Christmas and that he would not be late in future. वो बोला था कि दिस इज़ माई जेन्युइन रीज़न, इसकी वजह से मैं लेट था. इन फ्यूचर मैं ऐसा कभी लेट नहीं होऊंगा. Then Scrooge begins by saying that he found Bob's behavior intolerable and for that reason he would give him a raise in his salary. Straight. So Scrooge transformed into a better man now, है ना. सब everybody is appreciating him. तो Bob को भी उसका behavior काफ़ी अच्छा लगने लग गया है ना, क्योंकि पॉजिटिव चेंज है तो appreciation तो डेफिनेटली होनी चाहिए. So the appreciation is that he would give him a raise in his salary. उसके सैलरी में रेज करेगा, मतलब
सैलरी बढ़ा के उसे देगा. So Scrooge transformed into a better person, or we can say man now, and keeps his word to the goats, and he becomes a second father to Bob's son Tim Tim, right? So this is a very wonderful story. I must say कि कैसे एक पर्सन, जैसे कैसे स्क्रूज एक पर्सन जो कि बहुत रूड हुआ करता था इनिशियली अपनी लाइफ में, बट उसके साथ कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, उसको स्पिरिट्स मिली और उन्होंने उसको पॉजिटिवली गाइड किया. और सबसे बेस्ट पॉइंट कि उसने उन सब पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर अडेप्ट भी किया, है ना. उसके साथ साथ उसको पॉजिटिव चेंजेस भी वो अपने अंदर लेकर आए, विच इज़ अ गुड वी कैन से क्वालिटी इन अ ह्यूमन, कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, और वो दूसरों को समझ रहा है. और उसी के साथ क्योंकि वो अच्छा महसूस कर रहा था, अच्छा सोच रहा था, उसलिए इसी इसी रीज़न से उसे हर चीज़ अच्छी दिख रही थी. और उसके साथ उसी के साथ भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी, उसे अप्रिशिएशन मिल रही थी, है ना. और उसने काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा भी, है ना. टिम टिम जो टीनी टिम जो था बेसिकली, वो काफ़ी बीमार रहा करता था स्टोरी के अंदर, और किस तरीके से उसने की उसकी भी मदद करी, कैसे उसके लिए टर्की भेजी, और अब उसका वो सेकंड फादर भी बन गया. सेकंड फादर से बोलने का मतलब है कि उसी टेक केयर वो करता है, उसे ध्यान उसको उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे फर्स्ट या सेकंड पर्सन ज़रूर होता है जो उसकी हेल्प करता है ना. So, yes, that's all about this story, students, and I want you all to read this chapter and share this chapter summary with me so that I can get idea कि आप लोग को ये कितना चैप्टर समझ आया है, राइट. एंड यू ऑल हैव टू शेयर योर वर्क पर्सनली टू मी, to my number, okay. And yes, students, so that's all for the class.